ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕੇ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੇ ਉਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਔਗਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਥਾਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਗਣ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੂਲ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਔਗਣ ਜਗਤ ਦੇ ਖਲੇਰੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਲਾਲਚੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੌਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਪੰਜ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸ ਕਿਸੇ न ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂਲ ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਹੰ ਭਾਵ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਂ ਗੁਲ ਬਸਕੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੁਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਗ ਹੈ ਕਾਮ, ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਲ ਔਗਣ ਹੈ ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੰਡੇੜੇ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮਛਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰ ਭਾਵ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ ਚ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਣਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਪਨ ਖਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਗੁਣਵਾਨ ਕੋਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਅਹੰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਹੰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਓ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਪਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 90% ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਕਸਾਹਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਹੰ ਭਾਵ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਲ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਕਦੀ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਠੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਖੁਦ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
महक खुद बोल पैंदी है, शीतलता खुद ही दस देंदी है। जब शीतलता नहीं है तो फिर कहना पैंदा है शीतलता दा कि मेरे कोल है। जब महक नहीं है, सुगंधी नहीं है, तो फिर प्रगटावा करना पैंदा है। तो खैर अजो की 20वीं सदी मुखर भी बड़ी है, बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है। इतना बोलना पहले नहीं सी, और सारे बोल अहंकार तो पैदा हो रहे हैं। सारे बोल इस वास्ते ने कि मैं हाँ बोल बोल के अपनी होंद प्रकट करनी है। कोई अपनी जात प्रकट कर रहा है, कोई अपनी पात, कोई अपना रंग, कोई अपना रूप, कोई अपना स्वभाव, कोई अपने गुण, कोई अपनी धन संपदा, कोई अपनी बिरादरी, कोई अपना मुल्क, कोई अपनी भाषा और कोई अपना प्रांत। वर्ष के बोलों दे सब कुछ यही प्रकट हो रहा है। जद कोई कहता है मेरा देश सब तो वड्डा है, ये एक भाव प्रगट होता है मैं सब तो वड्डा, क्योंकि मैं छोटे देश का रहने वाला नहीं हाँ, मैं बहुत वड्डे देश का रहने वाला। हुण वड्डपना चाहिए तो वड्डे होने लई कोई सहारा चाहिए, तो कोई देश का सहारा पकड़ लेंदा है। मैं छोटे मोटे देश का रहने वाला नहीं, मैं बहुत वड्डे देश का रहने वाला। फिर मनुख ऐसा भी कह देंदा है मेरा मजहब बहुत वड्डा है। हुण मेरा मजहब बहुत वड्डा है तां ही मैं वड्डा, जे मेरा मजहब छोटा है तो फिर मैं छोटा। साडी भाषा बड़ी महान है, साडी कुल बहुत उच्ची है। तो कुल बहुत उच्ची है तां ही मैं उच्चा, जे कुल नहीं उच्ची तो फिर मैं कित्थों उच्चा। जात नहीं उच्ची तो मैं कित्थों उच्चा। जात नूं उच्चा करना, कुल नूं उच्चा करना, भाषा नूं उच्चा करना, प्रांत नूं उच्चा करना, मुल्क नूं उच्चा करना, दरअसल ये भी मनुख ने अपनी होमे नूं उच्चा करने की कोशिश की है। और इन्हां ही तलां ते मनुख अपनी होमे नूं प्रगटांदा है। मेरा देश महान, तो स्पष्ट हो गई गल मैं महान हाँ, क्योंकि मैं एक महान देश का नागरिक हाँ। होमे अनेकां द्वार तो ये प्रगट होंदी है। मेरी भाषा कोई मामूली भाषा नहीं है, मेरा धर्म कोई मामूली धर्म नहीं है, मेरी कुल कोई मामूली कुल नहीं है। तो मनुख दी ये होमे जो हिरदे विच है, पर इस हिरदे की टंकी नूं हजारां ही टूटियां लगियां ने। कोई जात दी, पात दी, भाषा दी, धर्म दी, रंग दी, रूप दी, नस्ल दी, जिहदे राहीं होमे दा जल बाहर निकल रहा है। मनुख अपनी होमे नूं प्रगटा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि होमे दे बोल जिंदगी दे हर कर्म दे उत्ते हावी ने, लागू ने और प्रगट होंदे ने। साहिब फरमान करते हैं हों विच आया, हों विच गया, हों विच जमिया, हों विच मुआ। बुनियादी ते ये सतगुरु दसदे ने कि मनुख दी आउण दा कारण भी होमे है। मैं हाँ ते कहंदे ने उतने चिर तक ईश्वर भी उसदी होंद नूं कायम रखदा है। तू है ते जिस दिन बंदा कह देंदा मैं नहीं हाँ तू ही है, उस दिन कहंदे मनुख ईश्वर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। ईश्वर ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो दूजा तीजा दीवार नहीं, मैं ही दीवार हाँ। और ऐसा ये व्यापक रूप विच अजोके समय च मौजूद है। साहिब कहंदे ने ये होमे आण जाण दा कारण बनदी है, ये बार बार जन्म दिलांदी है। हाँ मैं यही बीज है, मैं हाँ तो परमात्मा कहता ठीक है तू है, तू रहेगा। साधना करदे करदे, भक्ति करदे करदे जिस दिन मनुख की सुरत उस अवस्था ते पहुंच जाए कि मनुख की जबान तो मैं ना निकले, तू ही तू निकले, कहने उस दिन मनुख ही परमात्मा हो जाता है, मनुख ही ईश्वर हो जाता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार विच भगत काना अपनी बाणी लैके आए सन। तो सतगुरां ने सुते सिद्ध कहा बई तू सुना, तेरा कलाम असी सुनना चाहते हैं। उन्हें अपनी रचना इत्थों आरंभ की, मैं ओही रे, मैं ओही रे। सतगुरु ने रोकया, कहने लगा नहीं ये बोल असी सुनने भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज करना ते दरकिनार असी ये सुनने भी नहीं। जिस दे मनुख दी मैं प्रगट होवे, जिस दे मनुख दी मैं दा जिक्र होवे, मैं दा वाधा होवे, ये बोल असी नहीं सुनने, ये बोल असी नहीं दर्ज करने। असी ते ये बोल सुनने ने, ये बोल दर्ज करने ने। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। हुण मेरे विच मैं मिट गई, हुण ते मैं जिधर देखदा तू ही तू है, तू तो बिना हुण होर कुछ भी नहीं है। तो साहिब इत्थे फरमान करदे ने मनुख
अहंकार करके ही आउंदा है, मैं भाव करके ही आउंदा है, और मैं भाव ही मौत का कारण बनती है। जिस दिन मैं मिट जाती है उस दिन मनुख नूं ऐसा बोध आउंदा है, न किछ जन्मे न किछ मरे। कुछ जमदा नहीं, कुछ मरदा नहीं। दावे नाल कह दिता है भगत सिरमौर श्री पीपा जी ने। आप कहते ने काया बहुखंड खोजते नौ निद पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो राम की दुहाई। श्री पीपा कहते ने दुहाई है हे ईश्वर, गल कुछ होर सी ते मैं समझदा होर रहा। मैं ते समझदा रहा कुछ जमदा है कुछ मरदा है, कुछ आउंदा है कुछ जाउंदा है, और इस तो इलावा कुछ खुशियां ने कुछ गमियां ने। पर अज मैनू पता चले तो कुछ भी नहीं, तू ही तू है। ना कछ आए बो ना कछ जाए बो राम की दुहाई। हे राम, अज जद मैं तेरे विच लीन होया ते मेरा मैं भाव मिटिया है, ते हुण मैं ऐसा समझदा कोई जमदा नहीं कोई मरदा नहीं, न किछ जन्मे न किछ मरे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कौन मुआ है कौन जमे है। ये भ्रांतियां ने, ये भरम भुलेखे ने, सिर्फ मैं दे तल तो पैदा होंदे ने, सिर्फ अहंग भाव तो पैदा होंदे ने। तो साहिब कहते मनुख दा ये जिहड़ा अहंकार है, अहंकार दी सोचनी ही जन्म मरण दा कारण बनदी है, और अहंकार दी सोचनी ये कबूल करने ते मजबूर कर देंदी है मेरा जन्म होया है मेरा मरण होया है, मैं जमया मैं मरांगा, मेरा जन्म होया है मेरी होंद है मैं प्रगट होया। साहिब कहते इस तरह हौ में बद्धा आवे जाए, अहंग भाव करके आवना जावना बनिया रहिंदा है। साहिब अगां चल के कहते हौ विच जमया हौ विच मोआ। जे मनुख जिक्र भी करे मेरा जन्म होया है तो ये भी अहंकार भाव मौजूद है, मेरा जन्म होया है तू किथे है। जैसे जैसे कोई मेरा करदा है मैं भाव वधदा है, मेरा धन मेरा तन मेरी कुल, मेरा मेरा जितना ज्यादा इकट्ठा होगा मैं दी ढेरी उतनी वड्डी हो जाएगी। मेरे करके ही मैं दी ढेरी वधदी है, मेरा कुछ नहीं तो फिर मैं भी कुछ नहीं। तेरा तेरा संग्रह करिए तो फिर तू ही बचदा है मैं नहीं बचदा, ते मेरा मेरा करिए तो फिर मैं ही बचदा है तू एक पासे हो जाना है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। तो मेरे दा मैं नाल संबंध है, तेरे दा तू नाल संबंध है। भगत कहते ने तेरा 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 सब कुछ तेरा, एक दिन तू नाल जुड़ जाते हैं। संसारी कहता है मेरा मेरा मेरा, अपनी मैं नाल ही जुड़े रह जाते हैं। मैं बोझ है, मैं तनाव है, मैं भार है, मैं जन्म का कारण है, मैं मरण का कारण है, मैं दुखों का मूल है, मैं संताप का घर है, मैं विकारां दी खान है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र श्लोक दे प्रमाण किया है कि मैं मनुख दे हर किरदार दे हर कर्म दे छाई रहिंदी है। जो ऐसा जिक्र भी करता है कि मैं जमया मैं मरिया, तां इहदे विच भी उहदी मैं मौजूद है, मैनू प्रगट कर रहा है, अहंग भाव नू प्रगट कर रहा है। हौं विच जमया हौं विच मुआ, हौं विच दिता हौं विच लिया। जे दाता बनया देण वाला भी बनया तां कहंदा मैं दिता मैं दानी। हुण जितना वड्डा दानी उतना वड्डा अहंकारी, जितना वड्डा ज्ञानी उतना वड्डा अहंकारी। इसनूं मनोविग्यानियां ने भी मान लिया, क्योंकि वड्डे अहंकार लई वड्डा दान चाहिए, वड्डे अहंकार लई वड्डा ज्ञान चाहिए। अजोकी सदी ज्ञानी सदी है। पहले इतना ज्ञान पृथ्वी ते नहीं सी जितना अज है। जितने विद्यालय ने, जितने कॉलेज ने और जितने महाविद्यालय ने, ये पहले पृथ्वी ते नहीं सन, अज ने। अज मनुखता जितनी पढ़ी लिखी है पहले नहीं सी। अज मनुखता को जितना बोध ज्ञान है पहले नहीं सी। पर अजोकी मनुखता जितनी अहंकारी है पहले नहीं सी। इस वास्ते मिलनसारी दे जज्बे खत्म हो गए, मेल मिलाप खत्म हो गए। कहंदे ने मैं दा मैं नाल मेल होना बड़ा बहुत कठिन है। मैं दा मैं नाल तनाव ते हो सकता है, मैं दा मैं नाल रंज ते हो सकता है, मैं दा मैं नाल टकराव ते हो सकता है, झगड़ा ते हो सकता है,
मैं दा मैं नाल मिलन नहीं है, मैं दा तां तू नाल ही मिलन है। मैं ते तू दे विच ही लीन हो सकदी है। मैं दे आसरे ते वधदी है। दोवें पासे मैं करन वाले होण तां दोहां दी मैं वध जाएगी, दोहां दा अहंकार वध जाएगा। एक पासे परमात्मा होवे और कमाल दी गल है, उसने किसी थां भी अपनी होंद नूं प्रगट करने की कोशिश नहीं की। मैं हां ऐसा वो ढंडोरा किधरे भी नहीं दिंदा। हाँ, जिन्हां ने उसनूं जाणिया है उन्हां ने ढंडोरा पिछे पिटिया है, तू है मैं ते हां ही ना, मेरी ते कोई होंद ही नहीं है। लेकिन ईश्वर की तरफों ऐसा अज तक कोई दावा नहीं है। ये विनिम्रता की शिखर है कि समूह संसार का करता होवे ते करतेपण का कोई दावा नहीं, जबकि छोटी मोटी कृत का भी मनुख दावा करता है, इस कविता का करता मैं हाँ, इस किताब का करता मैं हाँ, इस वस्तु का करता मैं हाँ, इस कला का करता मैं हाँ। पर सारियां कला का ज्ञानी होंदे होया ते सारे संसार का रचेता होंदा होया ओदा दावा किसी थां ते भी नहीं है। कहंदे ने जिस दिन मनुख निर्दावे हो जाता है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ दावे निकल जाते हैं, उस दिन ही मनुख ईश्वर के नेड़े हो जाता है। पर अहंकार भाव ये दावा कर नहीं देता। अहंकार भाव ते इस तरह के दावे करवांदा है, मैं हाँ मेरी होंद है। तो साहिब कहते ने जितना दिता उतना अहंग भाव वधिया। बल्कि ऐसा भी होंदा है मनुख की काया मिट जाती है, मनुख का अहंकार जिंदा रह जाता है। बेशुमार धर्मशालावां दियां पत्थरां दे उत्ते सिलां दे उत्ते अज भी मनुखां दे दानी होण दे नाम लिखे पे ने, और वो पत्थर कूक कूक के कह रहे ने फलाना दानी सी, फलाना दानी सी। मनुख ने ऐसा पत्थरां तो भी कहलवाया है, निर्जीव पत्थरां तो। क्यों कि जिंद जान रखने वाले जिहड़े मनुख ने वो ते अपनी हों ते अपने ही दन नूं प्रगट करदे ने, दूजे दा किथे प्रगट करदे ने। ते जे दूजे दा प्रगट भी करनगे ते मजबूरी 2-4 दिन कहणगे फलाना दानी है, फलाना दानी है। काफी लंबे समय तक मनुख चाहता है कि मैनू कोई ऐसा आखे मैं दानी हाँ, मैं दानी हाँ, तो कोई दीवार कह सकती है, कोई पत्थर कह सकता है, मनुख नहीं कह सकता। इस वास्ते बहुते हंकारी मनुखा ने पत्थरों का आसरा लिया, जमीन का आसरा लिया, फर्श ते अपने जो है ना लिखा है। तो साहिब कहते ने दिता लेकिन देण दे अहंग भाव, मैं दिता जे लिया भी है तो मैं लिया है, मैं प्राप्त किया है, मैं हासिल किया है। इन्हां दोवां हालतां दे मैं बकायदा तौर पर लागू रही। हों विच खटिया, हों विच गया। मैं खटिया है, हुण खट्टण दे भी मैं बैठी है, और जे गवाच गया है, नुकसान हो गया है, मेरे कोल हो गया नुकसान, मैं गवाह बैठा। हर कर्म दे हर किरदार दे मैं बैठी हुई है। साहब अगां चल के कहंदे ने हों विच सचियार कूड़ियार, हों विच पाप पुण्य विचार। जे सच बोलदा है तो कहंदा मैं बोलिया है, कि सच दी कथनी मैं कीती है। सचियार होया है तो सचियार होण दे विच भी अहंग भाव प्रगट है। जे किधरे ऐसा इसनूं महसूस होवे मैं झूठ बोलिया है, ते जे दूजे अगों हुण कह रहा है कि मेरे कोल गलत बयानी हो गई है, मैं कूड़ बोलिया है, तो इस कूड़ बोलण दे विच भी अपनी शराफत अपनी सच्चाई नूं प्रगट करने की कोशिश पिया करदा। देखो मैं कितना सचियार हाँ कि बोलिया मैं झूठ है पर मैं कबूल कर देना। झूठ बोल के भी वो सचियार होने का दावा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इहदे नाल भी आहंग भाव मनुख का जो है वधदा है। तो साहिब कहंदे ने इन्हां दोहां हालतां दे उत्ते भी मैं लागू है। हों विच पाप पुण्य विचार, पाप दी विचार कर रहा है, पुण्य दी विचार कर रहा है, लेकिन भाव पैदा हो रहा है मैं विचार कर रहा है, इसनूं मैं विचारिया है। और सिर्फ मैं ही विचारिया नहीं, ये विचार भी केवल मेरे ने। कहंदे ने जगत दे विच नवीन कुछ ही नहीं है, सब कुछ प्रभु तो आद काल तो मौजूद है। अगर कोई कवि कहंदा है ये ख्याल नवीन ने मेरे, नहीं, खलाद विच मौजूद सन तेरी पकड़ दे आ गए ने। विचार खलाद विच मौजूद सन तेरी पकड़ दे आ गए ने। संगीत दी धुन बकायदा खलाद विच मौजूद सी, तेरी पकड़ दे आ गई है। जगत विच कुछ भी नवा नहीं है। हाँ, ये देखना है कि तालमेल किसदा बैठ गया तो किसने केड़ी चीज पकड़ ली, लेकिन खलाद विच सब कुछ मौजूद सी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तभी कह देता है कि जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। मता कि जगत नूं भुलेखा पै जाए ये ज्ञान मेरा है
मेरी सिरजना है, मैं इसका करता नहीं। ये ते जो परमात्मा दे इस खला दे मौजूद सी, मेरी पकड़ दे च आ गया, मैं जगत नूं कह दिता है, मेरा स्वयं दा नहीं है, ये ते मौजूद सी। तो ये सच्चाई है, बहुत वड्डी हकीकत है। और इस सच दी अगर मनुख नूं पहचान होवे, बोध होवे, तो फिर अहंकार करना औखा हो जाता है। साहिब कहंदे ने विचार करदा है पाप दी पुन दी, ते कहंदा मैं विचार कीता, हौं विच नरक सुरग अवतार। हौं दा मारिया होया ही कदी सुख भोगदा है, कदी दुख भोगदा है, कदी नरकां दे च, कदी स्वर्ग दे च। भाव पुन कर्म कीते ते ओदे नाल अहंग भाव रहा तां स्वर्ग, पाप कर्म कीते उसदे नाल जो अहंग भाव रहा नरक, नरक ते स्वर्ग। इस तरीके नाल ओ दुख ते सुख भोगदा है। हौं विच हसे, हौं विच रोवे, हौं विच भरिए, हौं विच धोवे। जे हसदा पिया ते इहदे च भी मैं भाव जारी है, मैं हस रहा, मैं रो रहा। ये प्रभु की कृत नहीं, ये हासा मेरी कृत है और ये रोना मेरी कृत है। जबकि हकीकत है सियाणे मनुख जो प्रभु नाल लीन होए ने, वो कहंदे ने हासा साडी कृत नहीं है, रोना साडी कृत नहीं है, ईश्वरी देन है। कहंदे ने पशु नहीं हस सकते, अगर वाकई कृत होंदी ते हासा शायद पशुओं कोल भी होंदा। किसी थां ते भी चौपाए जानवर खिड़खिड़ा के हसदे नहीं दिखाई देंदे। ये प्रभु की कृत है और मनुख नूं जो है मिली हुई है। पर मनुख कहंदा नहीं मैं हसिया, मैं रोया। तो रोण दे च, हासे दे च भी मनुख दा मैं भाव मौजूद रहिंदा है। हौं विच जाति जिनसी खोवे, जात दा मान, जिनस दा मान, नस्ल दा मान, इहदे च भी मनुख दा अहंकार वधदा है ते मनुख अपना जीवन नष्ट कर बैठदा है। हौं विच मूर्ख, हौं विच सियाणा, सियाणप दे ते इसदा अहंग भाव रहिंदा है। ते जे किधरे मूर्खता कबूल भी करदा है तां ओहदे च भी इसदा मौजूद है। जे कहंदा है मैं मूर्ख हां, तां दरअसल ऐसा कबूल करके भी ये अगले नूं दसण दी कोशिश कर रहा है कि मैं कितना सियाणा, देखो मैं अपनी खामी कबूल कर रहा। तो इस ढंग दे नाल अहंग भाव नूं सामने रख के मूर्खता कबूल करनी वास्तविक मूर्खता कबूल करनी नहीं है। अहंग भाव नूं सामने रख के अपनी गलती कबूल करनी, ये गलती कबूल करनी नहीं, उस तो होर गलतियां होणगियां, उस तो होर भुल्लां होणगियां। मोख मुकत की सार न जाना। इस तरह दा बंदा मुक्ति किवें प्राप्त होवे, अहंकार तो छुटकारा किवें प्राप्त होवे, इहदी सार नहीं जानदा, इहदा भेद नहीं जानदा। हौं विच माया, हौं विच छाया, अहंकार वस हो के कही जाता है कि ये जिहड़ी माया है ये परमात्मा की बनाई हुई छाया है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। लेकिन इहदे च भी उसका अहंग भाव मौजूद है। हौं में कर कर जंत उपाया। इस तरह हौमे नूं वधा वधा के प्रगट कर करके इसनूं बहुत भारी भरकम करके साहिब कहंदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने यह निजाम इस ढंग दा चाया कि बार बार उस हौमे दे बद्धे हुए जीव आउंदे ने, जन उत्पन्न